आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर नंदिता पाठक जी, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं, नॉमिनेटेड बाय मृदुला सिन्हा और ऑनरेबल गवर्नर गोवा ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। विनर हैं आप 100 Women 2016 contest based on popular voting in the field of community mobilization, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। साथ ही आप जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं NIUS की, नेशनल इंस्टीट्यूट स्कूलिंग, और आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ है जिससे आप बहुत ही प्रभावित हुई हैं, वो है नानाजी देशमुख, जो कि हमारे देश में बड़ी नोन हस्ती हैं और रहे हैं, और जिन्होंने इनकी जो पूरी की पूरी जीवन है उसको ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए लगा दिया था। और उन्होंने जब नंदिता जी से मुलाकात की तो नंदिता जी को कहा, गर्ल लाइक यू शुड नॉट वर्क फॉर मनी बट शुड सर्व द सोसाइटी। दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, and since then she has been committed to work in the field of social sciences under Deen Dayal Research Institute, Chitrakoot, India, working tirelessly for the social reconstruction of the society, contribution in social work, self-reliance programs in 500 villages, and she is a major motivating factor for the women in the villages covered by Chitrakoot project and encourage them to participate in development plan for their villages. Self-employment के लिए she has encouraged self-employment through training of thousands of women and youth, especially of backward and downtrodden classes, guided several thousand families for gainful employment through microfinance, self-help groups, and multi-level employment generation. Based on available resources and competence, she is able to generate employment by the concept of alternative industrialization. Campaign for self-employment through a campaign called Rozgar Abhiyan. She made direct communication personally with more than 1 lakh rural youth. So आपसे बढ़ के और women empowerment का हमारे पास इस समय क्या हो सकता है? She has organized the conference Mahila Sangam for 20,000 women with the aim of making them self-dependent and self-reliant. She was instrumental in devising the low-cost manufacturing process of more than 120 value-added products, thereby helping in empowerment in women of villages and in tribal areas. She has conducted various awareness camps organized by various medico-social issues, mainly focused on malnutrition, mother and child care in villages. आप PhD हैं फूड एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में, और आपने इंक्रीज कैसे हो एग्रीकल्चर यील्ड, इसको बढ़ाने में बहुत कार्य किया है। एज अ चेयरपर्सन ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, she got success in implementation of technique for increasing agriculture yield in low yielding areas of Bundelkhand, conservation of cultural traditions and games, और आप बहुत ही एक्टिवली engaged हैं conservation propagations of cultural traditions of Bundelkhand, जो कि हमारे बहुत ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम बहुत स्कोप है। He has organized programs for Bundelkhand folk songs, folk arts and folk dances. ये मैडम की पर्सनैलिटी को देख के आई कैन मेक आउट कि आप बहुत ज्यादा इन सब चीजों से जुड़ी हुई हैं। Overall development of youth, and since last 2 years से she is encouraging women groups for the conservation of traditional plant varieties and seed material. आपके काम सोलर लाइट्स एंड स्मोकलेस स्टोव्स के विषय में भी आपने ग्रामीण महिलाओं को जागृत किया है, उनको हेल्प की है, उनको प्रोवाइड की है इस तरह की सब लाइट वगैरह। और मैडम को जान के खुशी होगी कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में डिप्लोमा इन रेन्यूएबल एनर्जी चलाया जाता है, वहां भी सोलर से संबंधित काफी कार्य किए जाते हैं। तो आपसे इस समय मिलके और आपके विचारों को जानने के लिए हम बहुत सब लोग उत्सुक हैं। आपका बहुत सारे इंटरनेशनल सेमिनार्स में पार्टिसिपेशन रहा है और आप बहुत रेगुलरली इंटरनेशनल फोरम्स के इश्यूज में जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग नेशंस, लाइवलीहुड, सेल्फ रिलायंस कैंपेन, रूरल डेवलपमेंट, ये सब कार्य आप बाहर भी कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो कर रहे हैं। यू हैव अटेंडेड वेरियस इंटरनेशनल सेमिनार, शिकागो में आपने किया हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया हुआ है, बॉस्टन में आपने सेमिनार में आप रही हैं, और इंडिया में भी आपने वेरियस एजेंसीज के जो सेमिनार्स हैं उनमें आपने, जो कि CSIR है, ICAR है, IDCA है, इन सब में अपनी भूमिका निभाई है। She has been delivering lectures on the issues of rural development, food technology, self-reliance campaign,
Women Empowerment and Entrepreneurship Development at Tata Institute of Social Sciences, IIT Roorkee, IIM Indore, SRM University Chennai। आपको वीरांगना अवार्ड मिला हुआ है संस्कार भारती से 2012 में। सेवा रत्न अवार्ड बाई भारतीय शिक्षा मंडल इन 2011 में आपको प्राप्त हुआ है। यशवंत राव केलकर नेशनल यूथ अवार्ड इन 2009 में आपको मिला है। आपका इस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आप जानी जाती हैं। She has been awarded by Honorable Governor UP Shri Ram Nayak ji in Kushinagar for the outstanding work on agriculture and cottage industry organized by Hindustan Samachar 2015। इस तरह की आप धनी हैं जो इतना महिलाओं को जागरूक करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं, आज हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि रानी दुर्गावती का महिला अध्ययन केंद्र, ये जो नेशनल वेबिनार मुंबई तक हम कर रहे हैं, हमारे सभी पार्टिसिपेंट इससे लाभान्वित होंगे। मैडम को ये बताना चाहती हूँ कि महिला अध्ययन केंद्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का एम डिस्कवर, डेवलप एंड ट्रांसफॉर्म विमेन एंड क्रिएट सस्टेनेबल मॉडल्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ आवर मेंबर्स है, और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपने विचारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतना कुछ आपने बता दिया है, ये सब अकेली महिला कुछ नहीं कर सकती है, उनके साथ उनके परिवार के लोग और जिस संस्था में हम लोग जुड़े रहते हैं, वो सब लोगों की मेहनत के कारण, लगन के कारण एक महिला बनती है, वो फिर स्वावलंबन की दृष्टि से काम करना प्रारंभ करती है। और आपको मैं बहुत बहुत हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम सब लोग सेल्फ रिलायंट वुमेन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है वेबिनार के माध्यम से। इस वेबिनार में उपस्थित परम सम्माननीय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के परम सम्माननीय कुलपति महोदय जी का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं, क्योंकि जैसा मुखिया होता है वैसा पूरा उस संस्था का, उस परिवार का चिंतन चलता है। इसीलिए मुखिया इतना अच्छा हो, वो सबकी भला चाहेंगे, तो अपना विश्वविद्यालय भी आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर जा रही है। उनके नेतृत्व में उनका मैं हृदय पूर्वक आभार, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी का। एवं जब मुखिया अच्छा हो और परिवार के सदस्य यदि सपोर्टिंग इसमें रहे, ऐसे तब और भी आनंद आता है काम करने के लिए। ऐसे सम्माननीय रजिस्ट्रार साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। उनका बहुत सुंदर अभी हम लोगों ने व्याख्यान भी सुना। एवं इस कार्यक्रम को करने वाले राणा मैडम, जया जी एवं सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं सेल्फ रिलायंट वुमेन। सेल्फ रिलायंस माने क्या है? कई लोग ऐसा सोचते हैं महिला के हाथ में पैसा आ गया तो वो फिर स्वावलंबी हो गई। महिला यदि खूब सारा पढ़ लिख गई तो लोग सोचते हैं वो स्वावलंबी बन गई। महिला यदि विदेशों में जाकर अपनी भाषणबाजी किया तो लोग सोचते हैं वो स्वावलंबी हो गई। महिला ने यदि छोटा सा एक उद्यम प्रारंभ कर दिया तो लोग सोचते हैं वो स्वावलंबी हो गई। लेकिन स्वावलंबन का अर्थ बहुत ही विस्तृत रूप से हम लोग समझ सकते हैं। स्वावलंबन का अर्थ है वो महिला जिस परिवार में रहती है, वो परिवार कभी कोई भी उसमें गरीबी ना रहे, अशिक्षित ना रहे, अस्वस्थ ना रहे, उन लोगों का घर साफ सुथरा, महकता हुआ, खुशबू भरा हुआ हो, और उनके आसपास में, उस स्वावलंबी महिला के आसपास में जो महिलाएं रहती है, जो परिवार रहते हैं, वो भी खुशहाली का जीवन व्यतीत करे। ऐसे महिला को कहते हैं हम लोग स्वावलंबी महिला। और स्वावलंबन का अर्थ ये भी है कि वो महिला जहां पर रहे, सेल्फ रिलायंट वुमेन, वहां पर विवादों का, झगड़ों का कोई स्थान न हो, तब हम लोग कह सकते हैं वो महिला स्वावलंबी है। ऐसे स्वावलंबी महिला के बारे में आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एक परिचर्चा व्याख्यान के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आयोजन में मुंबई से जिन्होंने मदद किया उनका भी हृदय पूर्वक आभार एवं अभिनंदन करते हैं। मुंबई से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को महिला अध्ययन केंद्र के लिए, रिसर्च सेंटर के लिए हेल्प मिल रहा है। हम सब लोग जानते हैं महिलाओं का स्वावलंबन की बात यदि आती है तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र का भी नाम आता है।
कितनी सारी ऐसी महिलाएं थी जो स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करते हुए व्यक्तिगत जीवन में स्वावलंबन, पारिवारिक जीवन में स्वावलंबन, सामाजिक जीवन में स्वावलंबन और राष्ट्र के लिए भी स्वावलंबन का जीवन का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। एक छोटा सा मैं महाराष्ट्र का बताना चाहूंगी। भारत रत्न कारवे जी ने सबसे पहले महाराष्ट्र मुंबई में महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी खोला था। कितनी पुरानी बात है, कब से चली आ रही है महिलाओं को स्वावलंबी और शिक्षित करने की बातें। इसीलिए उनका भी मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करते हैं। आप सब लोगों को मैं बताते हुए हर्ष महसूस होता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली हर एक लड़की, हर एक बालिका कभी वो ऐसा गलत दिशा में जा नहीं सकती, क्योंकि रानी दुर्गावती जी के नाम पर विश्वविद्यालय है और मुझे कहते हुए गर्व भी होता है। और मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय होम साइंस कॉलेज जबलपुर की मैं स्टूडेंट रही हूँ। जो कुछ मैं बनी हूँ उसी विश्वविद्यालय के दम से बनी हूँ। और होम साइंस कॉलेज में जो हमारे टीचर्स ने हम लोगों को जो गाइडलाइंस दिया, सिखाया, पढ़ाया, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से हमने पीएचडी भी किया है, ये हमारे लिए आज गौरव की बात है और डर भी लगता है। जिस विश्वविद्यालय में हम लोगों ने अध्ययन किया और उन लोगों के, उन प्राध्यापक बंधुओं के बीच में एक विद्यार्थी के रूप में बात करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपने हम लोगों को इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदयपूर्वक आभार, अभिनंदन एवं वंदन करते हूँ। हम लोग जानते हैं भारत में महिला को स्वावलंबी बनाने की जरूरत नहीं होता, और भारत क्या पूरे विश्व में महिला अपने आप में एक आत्मनिर्भर महिला है, स्वावलंबी महिला है, क्योंकि भगवान ने हम लोगों को इतने सारे गुण दे रखे हैं। चाहे वो सहन शक्ति की बात हो, शौर्य की बात हो, पराक्रम की बात हो, विद्या ग्रहण करने की बात हो, मेहनत करने की बात हो, लगन की बात हो, कोई भी जो हुनर सीखने की बात हो, या हुनरवान बनाकर जो भगवान ने नीचे भेजा है महिला को, अंग्रेजी में वुमेन कहते हैं। इसीलिए यहाँ कोई जेंडर इश्यूज नहीं है, वुमेन के अंदर ही मेन है। इसीलिए हम लोग एक कड़ी के रूप में मिलजुल कर जब काम करेंगे तभी अपना समाज और वो महिला स्वावलंबी हो सकती है। इसीलिए यहाँ कोई मेल फीमेल का जेंडर इश्यू है ही नहीं। एक महिला का सशक्तिकरण की इसीलिए बात करते हैं क्योंकि वुमेन है, उनके अंदर मेन भी है, उनके अंदर फैमिली भी है, उनके अंदर वैल्यूज भी है, उनके अंदर अपनी पूरी क्षमताएं हैं। इसीलिए लोग आज बात करते हैं, हर एक विश्वविद्यालय हो या बड़े बड़े संस्थाएं हो या सामाजिक संगठन के लोग हो, बात करते महिला को स्वावलंबी होना चाहिए। पर भगवान ने तो स्वावलंबी बनाकर भेजा, इसीलिए हम लोगों ने सृष्टि की रचना करते हैं। हम लोग की कोख से ऐसे ऐसे लोगों की पैदाइश होती है। स्वामी विवेकानंद जी जैसा, कल हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस मनाया, और रानी लक्ष्मीबाई भी तो एक माँ की कोख से जन्मी है, रानी दुर्गावती जी भी तो एक माँ की कोख से जन्मी है। जय अपना जो मैडम लोग आज, राणा मैडम हो, जया मैडम हो, प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी हो, रजिस्ट्रार सर हो, या विश्वविद्यालय को उच्च स्तरीय स्तर पर ले जाने वाले हर एक बंधु भगनिया भी माँ की कोख से जन्म लिए। इतनी बड़ी आत्म स्वावलंबी माँ जब है तो स्वावलंबन सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन काल के चलते चलते, वेस्टर्नाइजेशन के चलते चलते और कुछ मुगलों के आक्रमण के चलते हमारी भारतीय नारियों के ऊपर इतना संकट आ गया, उन लोगों को कह दिया गया कि तुम पर्दे में अंदर रहो, तुम्हारे अंदर कुछ क्षमता नहीं है। आज भी लोग उसी को बोलते हैं लड़कियों को, अरे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अरे क्यों नहीं कर पाएगी? आप लोग देखते होंगे कल्पना चावला जी को यदि कोई ये कह दिया होता तुम कुछ कर नहीं सकती, तो वो कैसे अंतरिक्ष में जाती, अपना नाम कमाती। एक पायलट नीरजा जी, कैसे वो अपनी साहस और स्वावलंबन के साथ, सीखे हुई शक्ति के साथ उन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए सैकड़ों लोगों को उन्होंने बचाया है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, स्वावलंबी महिला के लिए जो चैलेंजेस है, सबसे बुरा जो आज हम लोग बात करने वाले, क्योंकि हम लोग तो सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस कितने हैं? सिर्फ इतना, घर से शुरू हो जाता है। अरे हर घर में नहीं होता, हर घर में होता तो ऐसे सब लोग दिखते नहीं आज।
कुछ घरों में ऐसा होता है क्योंकि उनकी माँ बेचारी पढ़ी लिखी नहीं होती है, कभी उनके साथ गड़बड़ हुआ होता है तो डरती है। बेटी बहुत सुकुमारी होती है ना, बेटियों को कुछ हो जाएगा तो माँ बहुत रोती है, इसीलिए माँ शुरू कर देती है, पिताजी शुरू कर देते हैं, मामा मामी शुरू कर देते हैं, अरे बाहर मत जाओ, बाहर जाओगे तो तुमको कुछ हो जाएगा। जब महिला लड़की बाहर ही नहीं निकलेगी तो वो उस वातावरण को कैसे समझेगी? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। स्वावलंबी महिला जब तक की दुनिया नहीं देखेगी, माने आसपास की वातावरण, आसपास के लोगों से मिलना, विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ाई करना, सीखना, ये नहीं करेंगी तो वो आगे बढ़ नहीं सकती। एक और चीज है, पढ़ाई का अर्थ ये मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ पीएचडी हो, एमएससी हो, एमए हो, ये एक है कि वो नॉलेजेबल होना चाहिए, उसके अंदर की जो विवेक है, विजडम है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उससे भी महिला स्वावलंबी बन सकती है। क्योंकि हम लोग की दादी नानी लोगों को हम लोग देखते हैं, क्या वो लोगों ने पीएचडी थोड़ी पाया, लेकिन उनके पास जितना विजडम था, जितना समाज को जोड़ के चलने की जो सामाजिक शक्ति थी उनके अंदर, वो हम लोग की जैसे महिलाओं में नहीं आ सकता, क्योंकि उनके परिवार उनको सबसे मिलने जुलने के लिए छोड़ देते थे, भेज देते थे, रिश्तेदारों में जाते थे, नातेदारों में जाती थी, कार्यक्रमों में जाते थे, वहां के वातावरण से वो सब नॉलेज गेन करती थी, तब वो स्वावलंबी बनती थी। कहते ना कुएं की मेंढक, महिलाओं का सबसे बड़ा चैलेंज है, लोग कुएं की मेंढक बनाकर घर की किचन तक की वो लोग रखना चाहते हैं। ये चीज यदि थोड़ा सुधर जाए तो हम लोगों की महिलाओं का, अपने परिवार की महिलाएं स्वावलंबन क्या, वो पूरी देश में एक अलग अपनी अनोखा पहचान वो कर सकती है, दिखा सकती है। दूसरी चीज, जो महिला बन गई, बेचारी बचपन में पढ़ नहीं पाई, लेकिन वो अब पढ़ना चाहती है, लेकिन कौन पढ़ाएगा उसको, कौन सिखाएगा? इसीलिए आप देखिए, एक अभी सांड की फिल्म पिक्चर आई थी, वो बूढ़ी महिलाएं, 2 महिलाएं थी, सिर्फ एक डॉक्टर, एक युवा कार्यकर्ता मिलता है, कहता है बच्चियों को सिखाने आता है, वो सीखते नहीं बच्चियां, और वो दादी उठा के राइफल सेट कर देती है, बढ़िया शॉट लगता है, निशाना लगता है, तब वो उस महिला को वो आगे बढ़ाता है। इसका मतलब है सबसे बड़ा चैलेंज है, हम महिलाओं को कौन पुश कर रहा है, कौन पिक कर रहा है, कौन पिनअप कर रहा है, कौन पुलअप कर रहा है, कौन पुशअप कर रहा है, इस पे निर्भर करता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कुछ लोग अच्छी दृष्टि से महिलाओं को आगे बढ़ाते, कुछ लोग गड़बड़ दृष्टि से महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए कौन हम लोगों को पुशअप करने के लिए आ रहे, प्रमोट करने के लिए आ रहे, जागरूक करने के लिए आ रहे हैं, ये समझने की शक्ति महिला को होना, बच्चियों में होना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं तो अपने नैतिक मूल्य खत्म हो जाएंगे, गड़बड़ रास्ते में यदि महिला चली गई, बिटिया चली गई, पूरा अपना गड़बड़ हो सकता है। दूसरा चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट, वो बेचारी कैसे करेंगी? बच्चियां है ना, घर के बच्चों का देखभाल करने, भैया बहन घर पे होते हैं और घर के लोग होते हैं, पति होते हैं, घर है, परिवार है, रिश्तेदार आते हैं, तो वो बेचारी टाइम नहीं मैनेज कर पाती। वो स्वावलंबी तो है, लेकिन घर की और खेती किसानी तक स्वावलंबी रहती है, उस टाइम से वो बाहर नहीं आ पाती। इसीलिए प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, अच्छे पढ़े लिखे महिलाओं की ये सख्त एक जिम्मेवारी है कि हम लोग उन महिलाओं को टाइम कैसे मैनेज करना, वो लोग ये काम को, जैसे हम लोग को पता है कृषि विज्ञान केंद्रों में देखते हैं या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले करते हैं, महिलाओं की जो क्षमता में जो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, उनकी मेहनत को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग टूल्स उपलब्ध कराते हैं उनको, कैसे वो जल्दी से भोजन पका सकती है, विधियां हम लोग समझाते हैं, सब्जी काट के कैसे रखना हम लोग पहले से बता देते हैं, नींबू का रस निचोड़ के रख लेंगी तो जल्दी से काम करके ऑफिस के लिए टाइम पे जा सकती है, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए जल्दी से आ सकती है। हम लोग उनको बताना पड़ेगा। एक्सपोजर की कमी के कारण वो महिलाएं टाइम मैनेज नहीं कर पाती, ये सबसे बड़ी समस्या। और रजिस्ट्रार सर ने तो बता ही दिया है कि पैसे की कमी, महिलाओं को लोग जल्दी पैसा नहीं देते, इसीलिए हर जगह बात होती है कि महिलाओं को पैसा आ जाना चाहिए। जब महिलाओं के पास पैसा आ जाता है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये भी देखने को मिलता है सेल्फ रिलायंट वुमेन में, वो फिर कई महिलाओं का उदाहरण है, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रही हूँ,
पैसा जैसे ही उनके पास आ गया, वो फिर गलत दिशा में भी सोचना शुरू करती है। फिर वो स्वावलंबी नहीं रह पाती है, सिर्फ अपने लिए चिंता करती है। वो अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के हित में वो चिंता नहीं करती। इसीलिए ये भी बड़ा चैलेंज है। बैंक में पैसा आया, यदि अनपढ़ महिला है, सरकार तो दे रही है ना सब महिलाओं के खाते में, कोई बेचारी विधवा है तो उनके खाते में पैसा आता है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण, जागरूक नहीं होने के कारण भैंस पालन करने के लिए बैंक में पैसा आ गया उनको, लेकिन बैंक से पैसा निकालते नहीं आता, तो कोई ना कोई मदद करने पहुंच जाता है, वो उसमें से पैसा ले लेता है। वो महिला फिर बेरोजगार रह जाती है, वो स्वावलंबी नहीं बन पाती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए जो नेट बैंकिंग है, मोबाइल ऑपरेशन है, ये सब वो कर नहीं पा रही है, क्योंकि करंट सिनेरियो में जितनी चीजें आ रही है उससे वो कोप अप नहीं करने के कारण ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत देश के, वो चाहते हर एक महिला स्वावलंबी बने, उसको कभी कोई कष्ट ना हो, बहुत मेहनत कर रहे, लेकिन उन लोगों को वो सुविधाएं पहुंचने के बाद भी उसका योग नहीं कर पा रहे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। हम सब पढ़े लिखे लोग अपने अपने समूहों में, अपने अपने घर के आसपास में भी काम करने वाली बाई भी घर में आती है, उसको हम लोग 10 मिनट का समय निकाल कर उनको सिखाए कैसे मोबाइल ऑपरेशंस करना, अपने पिन है, अपने पासवर्ड्स है, ये किसी को नहीं बताना है। बताओगी तो तुम्हारा सब चोरी हो जाएगा। बड़ा संकट है, सिखाने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। हम सब लोग मिलकर उन लोगों को बताएं, तब ये जो है कुछ चैलेंजेस में उन लोगों को तकलीफ कम होगी। एक दो उदाहरण मैं बताती हूँ। जब महिला स्वावलंबी हो जाती है तो पहले उसका पति छोड़ गया था, जो मेरा अनुभव है, एक परिवार था, पति छोड़ के चला गया, वो बढ़िया सिलाई कढ़ाई करके अपनी स्वावलंबी हो गई, पैसा कमाने लग गई, तो उसका पति भी वापस आता है, जो बेटा छोड़ के गया था वो भी वापस आता है। इसीलिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय वुमेन स्टडीज रिसर्च सेंटर ने ये सोचा है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, क्योंकि महिला परिवार की धुरी है, वो जब घूमती रहती है तो परिवार पूरा चलता है। इसीलिए महिला को कहा है कि सेल्फ रिलायंट वुमेन आज की सख्त जरूरत है। जब ऐसा हो गया तो परिवार भी अच्छा हो गया, फिर वो अपनी गांव के बारे में भी सोचने लगी। एक मैं उदाहरण देती हूँ, बहुत बड़े बड़े सेल्फ रिलायंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो आपको नेट में मिल जाएंगे, हम लोग पढ़ते हैं सबका। एक महिला थी, बिल्कुल खाने पीने का नहीं था, पति थोड़ा विकलांग था और वो कुछ कर नहीं पाती थी। हम लोगों ने उसको सिलाई प्रशिक्षण दिया, सिलाई सीख ली, मास्टर ट्रेनर बन गई। सैकड़ों लड़कियों को वो खुद मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करती है, पैसा कमाती है और स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करती है। स्वावलंबन स्वरोजगार से आना चाहिए, स्वरोजगार ही स्वावलंबन का आधार है। जो महिलाएं पापड़ अचार जो भी बनाती है उसको मजाक मत उड़ाइए। हम लोग कहे ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अरे वो तो पापड़ बनाती है, वो तो अचार बनाती है, वो तो मुरब्बा बनाती है, वो तो साड़ी में फॉल लगाती है, वो तो माला बनाती है, वो बिंदी बनाती है, वो क्या है, उसको कुछ नहीं आता। ऐसा मत बोलिए। पापड़ अचार मुरब्बा जब हम लोग अपने घर में बनाएंगे, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे बेपढ़े हो, चाहे हम लोग धनवान हो, चाहे गरीब हो, तब सेल्फ रिलायंस की बात हो सकती है। नहीं तो आज हम लोग चिल्लाए बाहर के उत्पादों को बैन करो, अरे जब खाने को नहीं है, जो मिलेगा वो हम लोग खाएंगे। इसीलिए आप निवेदन आप लोगों से करना चाहती हूँ, हम लोग महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से बहुत कुछ कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी केंद्र सरकार हो, सरकारें जहाँ पे भी है, वो सब चाहती है कि महिलाओं को खूब आगे बढ़ाए। शिक्षा के क्षेत्र में साइकिलें दिया जाता है बच्चियों को, पहले तो बच्चियां जा ही नहीं पाती थी। अपॉर्चुनिटीज कितने बढ़ गए, यदि कोई 90% ले आया, 80% ले आया, तो उनको तुरंत कहते क्या चाहिए, तो सरकारें लैपटॉप्स दे रही है। लेकिन फिर वही चैलेंज, उन लैपटॉप्स में हमारी बच्चियां क्या देख रही है। ये माता को यदि पढ़ी लिखी नहीं होगी, सेल्फ रिलायंट नहीं होगी, वो फिर गड़बड़ दिशा में जा सकता है। इसीलिए बहुत ऐसी बातें हैं, स्वावलंबन का दिखावा नहीं है, ये आत्मसात करके हम लोग को दूसरों को स्वावलंबी बनाना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन हो सकता है। इसका हम लोग ने 500 गांवों में भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के मार्गदर्शन में करके दिखाया है। वो महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी,
उन लोगों को हम लोग ने भजन मंडलियां बना दिया। नहीं भाभी, तुम्हें चढ़ना है मंच पे, मंच पे चढ़ती थी, वो भजन करती थी, घूंघट में करती थी। कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा भारतीय परंपराओं को तुम लोग विरोध करते हुए आगे आओ, क्योंकि उसको घर वाले मारेंगे ना, ये भी चिंता करना पड़ता है। यदि एक महिला स्वावलंबी हो गई, मैं पर्दा नहीं करती हूँ, तो मैं दूसरे महिलाओं को नहीं कहती थी कि तुम पर्दा मत करो, पर्दा निकाल कर बाहर आ जाओ। मुझे पता है वो जब गांव लौट के जाएगी उसको कुटाई होती है, आप लोग भी जानते हो। कई संस्थाओं में महिलाएं आती है, घर जाके मार खाती है। ऐसे सेल्फ रिलायंस नहीं चाहिए, 100 रुपए वाला सेल्फ रिलायंस नहीं चाहिए। सेल्फ रिलायंस का अर्थ है कि वो स्वावलंबी महिला बनकर स्वाभिमान पूर्ण जीवन व्यतीत करे, उसका पति उसको सम्मान दे, उसके नंद उसको सम्मान दे, उसकी बेटियां उनको सम्मान दे, उनके सास उसको बोले बहू तुम नहीं हो तो हमारा घर नहीं चलता, तुम हमारी प्यारी बहू हो, बहू रानी हो कहे। ऐसा मेरी माता जी, इसीलिए बोल रही हूँ, जब तक कि व्यक्तिगत का चिंतन नहीं होता तो हम लोग भी दूसरों का कर नहीं सकते। मेरी माता जी रिटायर्ड टीचर है, मेरी सासू माँ, लेकिन आप अभी टेक्नोलॉजी का देख लीजिए, उनके पास एंड्रॉइड फोन आ गया। हमें लगता था हमारी माता जी कैसे ये सब उपयोग कर लेंगी, आप विश्वास नहीं कर सकते। वो डीपी चेंज कर लेती हैं, वो मैसेजेस भेजती हैं, वो सभी यूट्यूब में, हो सकता है आपका भी सुन रही हो क्योंकि उनकी बहू बोल रही है, तो वो देखती है यूट्यूब में, शेयर करती है, बताती है, फोन करती है, बेटा ये गलत हुआ, ये अच्छा हुआ। ऐसे समझदार आत्मनिर्भर महिला की आज जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर महिला नहीं होगी तो आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। इसमें भाषण नहीं, सच में स्वावलंबी महिला का एक बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। स्वावलंबी महिला का अर्थ यही है, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आवश्यकता को, समय को, पैसा को देखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाए, उद्यमी बनाए। उद्यमी भी वो जो कच्चा माल आधारित उद्योगों की वो स्थापना करे, आवश्यकता आधारित उद्योगों की वो स्थापना करके दूसरों को खुशहाली का जीवन दे। और एक जब स्वावलंबी बनती है वो फिर घमंड में ना आए, आत्मविश्वास जरूर हो, हम लोग घमंडी ना बने। इसीलिए वो महिला 20-20, 25-25 हजार महिलाओं को लेके चल सकती है। डॉक्टर वंदना शिवाजी हो, किरण बेदी जी हो, अपने सामने उदाहरण है, डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी हो, कितने ऐसे लोग हैं जिनको देखकर हम लोग आगे बढ़ सकते। जबलपुर मेरा फेवरेट शहर है क्योंकि जबलपुर ने मुझे बनाया है। मैं आंध्र की एक तेलुगु बोलने वाली लड़की, मैं जबलपुर आई थी, और जबलपुर जब आई थी तो मुझे हिंदी नहीं आता था, अंग्रेजी और तेलुगु आता था। मैंने हिंदी बोलना थोड़ा थोड़ा सीखा जबलपुर में। और हमारे टीचर्स, चाहे वंदन हमारी मैडम स्मिता पाठक जी हो, और सरकार मैडम हो, वैद्य मैडम हो, हमारी राज्य लक्ष्मी मैडम हो, ये सब लोगों ने हम लोगों को बनाया है, उन्हीं की कृति है। हम लोग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का हम हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि ऐसी लड़कियों को तैयार करके समाज में भेज दिया। वो एनसीसी हो, एनएसएस हो, आरडीसी हो, खेलकूद हो, पढ़ाई हो, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष में हो, आप देख सकते हैं। इसीलिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली बहनों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है स्वावलंबन होता क्या है। जबलपुर स्वावलंबन का पाठ पढ़ाता है। इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज सिर्फ ये इतनी सी बातें आप लोगों के लिए, और मैं विद्यार्थी हूँ और अपने अध्यापकों से तो बोल ही सकती हूँ। आपको यदि लगा कि कुछ मैं गड़बड़ दिशा में बोली हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मिलेंगे। कोरोना महामारी में महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा काम आ गया आजकल। ऑनलाइन क्लासेस, वेबिनार्स घर में चलता है, पतिदेव घर में, बच्चे घर में। तो हम लोग स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, खुशहाली का जीवन तभी हो सकेगा। सबका ध्यान रखिएगा, बीमार न पड़िएगा। घर पे रहते हुए, आगे आने वाले 21 जून को योग दिवस है, सुरक्षित रहते हुए, घर में रहते हुए हम लोग योग परिवार जनों के साथ मिलकर करें, निरोगी रहे, यही कामना है। हम लोग ने ये, हम सब लोग
फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत के नारी है, ये हम लोग पूरा देश विदेशों में फैलाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप लोगों को, और माननीय कुलपति महोदय जी, आपका मैं हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। आपने ये मौका हमें दिया और इस वेबिनार की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय।